Hello everyone, myself Nishu Arya. We are back with our second video of atomic structure. In this video, we will be learning to write how to write electronic configuration, tricks to write electronic configuration. So please do like, share and subscribe the channel. Please share this video so that it can help others also. Thank you everyone. Let's start with our topic. In the first video, we have learned that an atom consists of shells and subshells. Those ones who have not watched our first video, I will be sharing its link in the description of this video. You can check over there. We have learned about shells, subshells, and what is atomic number, mass number, representation of an element, how many electrons any subshell can accommodate. Today we will be learning how to write electronic configuration in terms of subshells, which was stated by an principle of Bow rule. So today we will be learning of Bow rule. Let us revise quickly. As we have earlier discussed, an atom consists of certain fixed energy shells. These shells are K, L, M, N, O, P, Q and so on. Then we have learned that an atom consists of, actually an atom, not these shells further consist of certain subshells. These subshells are, see, always remember there is difference between subshells and orbitals. For the time being, we are talking about subshells. So we are having 4 subshells: S, P, D and F. The maximum, see, always remember shells are written in capital letters, whereas subshells are denoted with small case. These subshells, the maximum intake of S subshell is 2 electron, that of P subshell is 6 electron, D subshell is 10 electron, F subshell is 14 electrons. As we have discussed in our last video, that K shell consists of only one subshell, which is S subshell. L shell consists of 2 subshells, S and P. M shell consists of 3 subshells, S, P and D. N shell consists of 4 subshells, S, P, D, F. Similarly, all other shells consist of 4 subshells, S, P, D and F. O, P, Q. We are here mentioning that they also consist of 4 subshells, S, P, D, F. Okay, see, now each shell is having S subshell, and starting from L shell, each shell is having P subshell, or we can say that except K shell, each shell is having P subshell. Similarly, except K and L, each shell is having D subshell. Except K, L, M, each shell is having F subshell. ठीक है? अगर अभी इन्हें डिफरेंशिएट करना हो, मुझे किसी तरीके से मैं कैसे पता लगाऊं कि कौन से शेल की एस सबशेल के बारे में बात हो रही है, कौन से शेल की पी सबशेल के बारे में बात हो रही है? तो देखो, इसके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है। क्या आप सबको पता है कि हम इन शेल्स को नंबर से भी डिनोट करते हैं। इफ वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, दैट इंडिकेट्स K शेल, n इज इक्वल टू 2, L शेल, n इज इक्वल टू 3, M एंड सो ऑन। मतलब आप इसको n की वैल्यूज से भी इन शेल्स को इंडिकेट करते हो। तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए भी
हम इन्हीं नंबर्स को यूज करते हैं. विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स वी कैन डिस्टिंग्विश और वी कैन जज दैट विच शेल सबशेल वी आर टॉकिंग अबाउट. कैसे? हम ये जो आपकी सबशेल है इसके आगे जिस शेल की सबशेल है उसका नंबर लिख देते हैं. 1s. 1s मीन फर्स्ट शेल की s सबशेल. 2s 2p सेकेंड शेल की s और p सबशेल. 3s 3p 3d थर्ड शेल की सबशेल्स. Similarly 4 5 and so on. इस तरह से हम सबशेल्स को क्लासिफाई करते हैं, सबशेल्स को डिवाइड करते हैं. अब ये तो हमने डिस्कस किया कि किसी शेल के पास कितनी सबशेल्स होती हैं, उन सबशेल्स को कैसे डिनोट किया जाता है. बट द मेन थिंग हियर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सबसे पहले तो अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊं उससे पहले भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको बताना चाहूंगी, व्हाई ऑफ बाउ प्रिंसिपल वाज इंट्रोड्यूस्ड. व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ शेल्स. हम शेल्स के टर्म्स में भी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे. जैसे मैंने लिख दिया n इज इक्वल टू 7, तो इसकी सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या है, 2,5. मैंने लिखा f इज इक्वल टू 9, 2,7. na 11, 2,8,1. cl 17, 2,8,7. chlorine 17, 287. Similarly, potassium 19, 2,8,8,1. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पोटेशियम में के शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में तो हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो यहाँ पे हमने 8 और 1 क्यों लिखा, इसको 9 क्यों नहीं लिख दिया. मैं पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन 289 भी तो लिख सकती थी, बट मैंने 289 नहीं लिखा, मैंने उसको क्या लिखा 2881. अब आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आंसर आ रहा होगा, दिस इज ड्यू टू स्टेबिलिटी, दिस इज ड्यू टू सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करने के लिए किया गया, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए किया गया. अगर आप सबका आंसर ठीक है तो अगला देखिए, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21. कॉन्फ़िगरेशन पता क्या होती है, 2892. क्या स्कैंडियम के केस में वही स्टेबिलिटी नहीं देखनी चाहिए थी मुझे? क्या मुझे इस इलेक्ट्रॉन को एन शेल में जंप करा के 2883 नहीं लिखना चाहिए था, अगर स्टेबिलिटी ही रीजन था? हम लोगों को 9-10 तक टीचर्स भी सिखाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा आपको एक्सप्लोर करके समझा नहीं सकते, तो वहां पे आपको यही समझाया जाता है कि स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन जंप हो गया. तो हमें कॉन्फ़िगरेशन भी कितने एलिमेंट्स की सिखाते हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की, उसके आगे की सिखाई नहीं जाती. क्यों? क्योंकि उसके आगे ये स्टेबिलिटी वाला रूल ब्रेक होता है. ऐसे ही मैं लिखूं वेंडियम एटॉमिक नंबर 23, कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,11,2. अब क्या यहाँ स्टेबिलिटी नहीं ब्रेक हो रही थी? देखिए बच्चे, इट वॉज नेवर अबाउट स्टेबिलिटी, इट वॉज ऑलवेज अबाउट अ प्रिंसिपल टर्म्ड एज ऑफ बाउ प्रिंसिपल. ठीक है, या ऑफ बाउ थ्योरी बोल सकते हो आप, ऑफ बाउ प्रिंसिपल बोल सकते हो, ऑफ बाउ रूल बोल सकते हो. व्हाट वाज दैट? He was a scientist who stated that filling of electrons in any atom take place according to increasing energies of atomic
ऑर्बिटल्स या फिर उससे भी बेटर, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ सबशेल। इन सबशेल्स की इंक्रीजिंग एनर्जीज के हिसाब से फिलिंग होती है, या इनके अंदर जो फर्दर एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनकी इंक्रीजिंग एनर्जीज के हिसाब से फिलिंग होती है। फिलिंग कभी भी शेल्स के हिसाब से नहीं होती। We never follow shells while filling any atom electron. We follow its atomic orbitals, where we follow that the energies of atomic orbitals should be increasing while we are filling them. So let's write that quickly. Aufbau rule. He stated that filling of electrons in any atom take place according to increasing energies of atomic orbitals। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस एटम की which subshell is having or which orbital is having lowest energy and which one is having highest energy? देखिए उसके लिए ऑफबाउ ने एक डायग्राम दिया था, ठीक है। यही जो ऑर्डर है, यही जो पैटर्न हमने लिखा हुआ है, यहीं से डायग्राम बनेगा आपका। उसने डायग्राम क्या दिया था देखिए बच्चे, उसने कहा था सबसे पहले 1s सबशेल की फिलिंग होगी, फिर 2s, 2p, 3s, and so on, ठीक है। देखिए बच्चे ये था आपका डायग्राम। अब ये डायग्राम क्या स्टेट करता है कि हम यहाँ से चलना शुरू होंगे एंड कंटिन्यूसली हम चलते जाएंगे। इसका मतलब सबसे पहले फिलिंग होगी 1s सबशेल की। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? 2s के पास। 2s के बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? 2p और 3s के पास। 3s के बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? 3p और 4s के पास। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? 3d, 4p एंड 5s। So on, series will go on. So according to it, let's write a series. Series क्या आएगी? Series will be first electrons किस में जाएंगे? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. Then electrons will go into 3d, 4p, 5s, then the electrons will go into 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। ये बन गई आपकी सीरीज। इस सीरीज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। जैसे कि मैं आपको एक दो छोटे एग्जांपल्स बताऊं, जैसे कि हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे नाइट्रोजन एटम एटॉमिक नंबर 7। एटॉमिक नंबर 7 इसका मतलब इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और 7 ही प्रोटॉन्स हैं। क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट या गेन नहीं कर रखा, तो इट इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड 7 प्रोटॉन्स।
देखिए अब ये याद रखेंगे हम फिलिंग करने से पहले कि इन सब शेल्स की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। S की 2 इलेक्ट्रॉन्स, P की 6 इलेक्ट्रॉन्स, D सबशेल की 10 इलेक्ट्रॉन्स, F सबशेल की 14 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी हेल्प से ही हम यहाँ पे फिलिंग कर पाएंगे। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे, 1s के पास। उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो हम लिखेंगे 1s2। देखिए ये जो 2 है ये लिखा पावर में जाता है, लेकिन हम इसको पढ़ते कैसे हैं, 1s2। 1s स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, 1s2। फिर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 2s के पास, 2s2। फिर इलेक्ट्रॉन्स अब किसके पास जाएंगे, 2p के पास। देखो अभी तक आप कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर चुके हो, 2 + 2। जो पावर्स में लिखे जाते हैं, दोज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट यू आर फिलिंग इन एनी सबशेल। सो 2 + 2 दैट इज 4। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, आउट ऑफ विच 4 आप फिल कर चुके हो। कितने बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। नाउ इलेक्ट्रॉन्स विल गो इन 2p। द मैक्सिमम कैपेसिटी of 2p is of 6 electrons, but we are left with 3 electrons only, so we will mention here 2p3. This is how any electronic configuration is written. आप इसके अलावा और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, या क्लोरीन 17, chlorine having atomic number 17, so it is having 17 electrons. देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 1s में, 1s2। अब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 2s में, 2s2। इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 2p में, 2p6। इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 3s में, 3s2। देखो पहले काउंट कर लो आप कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर चुके हो, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12। आप 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर चुके हैं। कितने हैं थे टोटल, 17। 12 फिल कर लिए तो कितने रह गए, 5। अब 3s के बाद इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे, 3p में। 3p की मैक्सिमम कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन्स की, बट हमारे पास 5 ही बचे हैं। किसी रूम में 6 लोगों को बिठाया जा सकता है, लेकिन अगर 4 ही लोग हमारे पास होंगे तो हम 4 ही तो बिठाएंगे, 5 होंगे तो 5 ही तो बिठाएंगे। This is how electronic configurations are written. See now, whenever you are willing to write electronic configuration in terms of subshell, what you require? Either you remember this series, आप डायरेक्टली इस सीरीज को याद रख लो, या दूसरा तरीका क्या है, हर बार ये डायग्राम बनाइए, डायग्राम से पहले सीरीज लिखिए, सीरीज को रेफर करके आप कन्फिग्रेशन लिखिए। ये 2 तरीके हैं आपके अब कन्फिग्रेशन को लिखने के। बोथ मेथड्स आर समहाउ डिफिकल्ट। किसी भी सीरीज को याद रख पाना मुश्किल है, ठीक है, और दूसरा पूरा डायग्राम बना के फिर सीरीज लिखना, सीरीज से फिर कन्फिग्रेशन लिखना, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। So to cut out our time consuming process, we will use here trick to remember the same series. आप देखेंगे हमने ट्रिक से भी सेम सीरीज ही बनाई है। So let's start with our trick to remember this series so that we can write electronic configuration easily. The trick. This series is written according to method, according to the diagram. Now the same series we will be writing with the help of trick. See, what is the trick over here? School, public, school, public, school, daily, public, school,
Let's say it quickly. School, school, public school, public school, Delhi public school, Delhi public school, फरीदाबाद डेली पब्लिक स्कूल. आपको पता ही होगा डीपीएस की ब्रांचेस हर स्टेट हर एरिया में है. तो दिस इज द ब्रांच ऑफ फरीदाबाद. अब देखिए आपको क्या याद रखना है. दिस फर्स्ट लेटर एस, एस, पी, एस, पी, एस, डी, पी, एस, डी, पी, एस, एफ, डी, पी, एस. ठीक है, आपको ये फर्स्ट लेटर याद रखना है. चार ही वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, चार ही टर्मिनोलॉजीज हैं, बट हम उसको ट्वाइस यूज कर रहे हैं. स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड फरीदाबाद डेली पब्लिक स्कूल. जिसको हमने कैसे यूज किया. स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद डेली पब्लिक स्कूल. अब इसको इसी सीरीज के अकॉर्डिंग लिखते हैं. उसी ट्रिक को लिखते हैं. स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद डेली पब्लिक स्कूल. अच्छा मेरा कई बार ये एस डेल्टा जैसा दिख रहा है. बी केयरफुल. ओके, एस सब शेल स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट शेल. तो इसीलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हमने सब एस की नंबरिंग कर ली. पी सब शेल स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड शेल. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6. D sub shell start from third shell. 3, 4. F sub shell start from fourth shell. 4. देखिए अगर अब आप कंपेयर करें तो ये दोनों सीरीज सेम है. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4s, 3d, 4p, 5s. देखिए यहाँ पे डी का एक नंबर छूट गया था. आप जब नंबरिंग करेंगे बी वेरी केयरफुल. देखिए 5d, 4d, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं. 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, एग्जैक्टली सेम. लास्ट 7s. ये है आपकी सीरीज जिसकी हेल्प से आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. अच्छा एक और चीज आपने कई बारी सुना होगा या नहीं भी सुना तो मैं आपको बता देती हूँ. आपकी जो पीरियोडिक टेबल है इसे 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. कैसे हम जज करें कि कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी या फिर एफ. सी ऑलवेज रिमेंबर while writing the electronic configuration the last electron will go in which subshell the electron or the atom will belong to that block. आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल में आएगा, चाहे वो एस में आए, पी में आए, डी में आए या फिर एफ में आए, उसी ब्लॉक से आपका एटम या एलिमेंट बिलोंग करेगा. अब हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के एक बार क्विक प्रैक्टिस कर लेते हैं. जो मैंने आपको स्केंडियम और वेंडियम का केस बताया था वो कहाँ से आया था स्टार्टिंग में. अब एक बार उसको स्टडी कर लेते हैं. स्केंडियम एटॉमिक नंबर 21, वेंडियम एटॉमिक नंबर 23. सिमिलरली हम एक केस लिख लेते हैं सीजियम एटॉमिक नंबर 55. जो सीरीज अभी पहले लिखी थी उसी सीरीज का यूज करेंगे यहाँ पे. देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन सी सीरीज में जाता है? 1s, 1s 2, फिर 2s, 2s 2, 2p, 2p 6, 3s, 3s 2. कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं? 2 + 2 4, 6, 10, 12. आगे चलते हैं. 3p 6, 4s 2, 3d 1. ये हो गई आपकी
कन्फिग्रेशन। देखो 1 यानी कि K शेल के इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें 1 शेल K शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 2 यानी कि L शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 2 + 6 8 3 यानी कि M शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये भी M शेल के बेटा, ये भी M शेल का है 2 + 6 + 1 9 4 यानी कि N शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई 2 8 9 2। सिमिलरली लेट्स राइट ऑफ वेंडियम, वेंडियम के लिखते हैं क्विकली। वेंडियम एटॉमिक नंबर 23, ठीक है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। अब देखिए इस कॉन्फ़िगरेशन को भी वैसे ही लिख लेते हैं 1 यानी कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 यानी कि L शेल में कितने हो गए 2 + 6 दैट इज 8 3 यानी कि M में कितने हो गए 2 + 6 8 8 + 3 11 और 4 यानी कि N में कितने हो गए 2 8। चलिए इसी तरीके से हम सीजियम की कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेते हैं। एक बारी काउंट कर लेते हैं बच्चे, जल्दी से काउंट कर लेते हैं। यहाँ तक हो गए 10 और 10 20 30 36 36 और 2 38 38 और 10 48 टोटल कितने हैं हमारे पास 55। हम कितने फिल कर चुके हैं 48 हम फिल कर चुके हैं, कितने रह गए 7 इलेक्ट्रॉन्स 5p6 6s1। ये हो गई आपकी सीजियम की कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए अगर आपको ट्रिक याद है, ट्रिक से आपको सीरीज लिखना याद है, तो आपको जितना मर्जी बड़ा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट दे दिया जाए आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख सकते हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2-3 हमारी एक्सेप्शंस भी है, देयर आर 2-3 एक्सेप्शंस like cesium and chromium, which we will be learning in our next video that I will try to post tomorrow. So all of you till then please remember this concept, please understand it by watching the video. If you have any query then please let me know. Please like, share and subscribe the channel so that you people can get further notification of the upcoming videos. In the next video, we will continue with the Hund's rule of multiplicity, Pauli's exclusive principle, and exceptions of electronic configuration. Thank you all for watching.